In today's lecture, we will learn problems on elastic constant. There are three elastic moduli and one constant Poisson's ratio. Three elastic moduli E, K and G. E is modulus of elasticity or Young's modulus, K is bulk modulus and G is modulus of rigidity. Mu is Poisson's ratio, delta L is elongation or deformation of the bar and delta D is change in diameter. So first formula is volumetric strain. It is change in volume upon volume. Linear strain is represented by small e. It is the ratio of change in length to the original length. Lateral strain is ratio of change in diameter to original diameter for circular cross section, but for rectangular cross section it becomes delta b by b, change in width upon original width or change in thickness upon original thickness, delta t by t or delta b by b. But in circular cross section it is delta t by d. Poisson's ratio is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. It is also P upon AS, shear force upon shear area. Directly we have to remember it is the ratio of lateral strain to the longitudinal or linear strain. Shear stress equal to shear force divided by shear area. Poisson's ratio is mu equal to EL upon E only, and P upon AS is for shear stress, tau equal to shear force upon shear area. Next, shear modulus is the ratio of shear stress to the shear strain, tau upon phi. Bulk modulus is the normal stress to the volumetric strain, sigma upon EV. And relationship between E and K is E equal to 3K into 1 minus 2 mu. म्यू इज ऑल्सो कॉल्ड 1 बाय एम. कभी कभी प्रॉब्लम में क्या रहता है 1 बाय एम गिवन रहेगा. 1 बाय एम इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो, रिमेंबर इट. कभी कभी 1 बाय एम रहेगा, हम ढूंढते बैठेंगे पॉइजन्स रेशियो म्यू किधर है, तो 1 बाय एम ही हमारा म्यू होता है पॉइजन्स रेशियो. नाउ रिलेशन बिटवीन ई एंड जी इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू or 2g into 1 plus 1 by m is called mu, and the relation between ek and g is equal to 9 kg upon 3k plus g. तो इसके ऊपर हम प्रॉब्लम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी. तो स्टील बार ऑफ डायमीटर 30. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन डेटा इन एनी प्रॉब्लम. तो गिवन डेटा आर स्टील बार ऑफ डायमीटर इज 30 mm, diameter of bar is 30 mm, length of the bar is 300 mm, subjected to a pull of 54 kilonewton, kilo means 10 raised to 3 newton. Extension and change in diameter. Extension means delta L is 0.112 and change in diameter delta D is 0.00366 mm. ये दिया है हमें, और कैलकुलेट क्या करना है, पॉइजन्स रेशियो और बल्क मॉडुलस. तो सबसे पहले तो डेल्टा एल इक्वल टू, सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 30 स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट किया. इसकी वैल्यू आएगी 706.86 mm स्क्वायर. नाउ डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन नहीं है, वो हम कैलकुलेट कर लेते पी एल अपॉन ए डेल्टा एल से. Our P value is 54 into 10 raised to 3. Our length value is 300. Cross sectional area we have calculated with pi by 4 d square is 706.86. और डेल्टा एल हमारे पास चेंज इन एक्सटेंशन दिया है हमें 0.112, ये डेल्टा एल है हमारा. ई की वैल्यू आ गई 204.63 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये आने के बाद आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ई, नाउ कैलकुलेट पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन. पॉइजन्स रेशियो ई एल अपॉन ई. ई एल के लिए फॉर्मूला है डेल्टा डी बाई डी और ई के लिए फॉर्मूला है डेल्टा एल बाई एल. तो म्यू इक्वल टू एल ऊपर चला जाएगा, डेल्टा डी इंटू एल, डी नीचे आ जाएगा, डी इंटू डेल्टा एल. तो
हमारा म्यू वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा डी हमारे पास है 0.00366, एल वैल्यू है हमारे पास 300, डी वैल्यू है डायमीटर है हमारे पास 30 और डेल्टा एल हमारे पास 0.112. तो our mu value becomes equal to 0.327. अब म्यू आ गया, ई आ गया, तो ई और के में रिलेशन हमें पता है 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू. यहाँ से के आ जाएगा हमारे पास ई इक्वल अपॉन 3k इंटू 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ई अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू. Value of E is 204.63 into 10 raised to 3 upon 3 1 minus 2 into 0.327 Poisson's ratio. Our K value becomes 196 into 10 raised to 3 MPa. ये हमारा K वैल्यू आ गया. अगर G भी पूछा जाता तो हम G भी कैलकुलेट कर सकते थे. यहाँ से we have relation between E and G 2G into 1 plus mu और G equal to E upon 2 into 1 plus mu. यहाँ से हम G भी कैलकुलेट कर सकते थे. अब हमारा E का वैल्यू है 204.63 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 0.327 सॉरी. तो जी का भी वैल्यू जो भी आता हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम में पूछा नहीं है. ओनली वी हैव टू कैलकुलेट बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो. इस तरह से हम के का वैल्यू कैलकुलेट किया, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू मिल गई मुझे दोनों भी. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. हियर स्टील ट्यूब इज गिवन. ट्यूब मीन्स एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर बोथ शुड बी गिवन एंड इट इज गिवन हियर. एक्सटर्नल डायमीटर इज 18 mm and internal diameter is 12 mm. Given data, axial pull is 2 kilonewton. 2 kilonewton means 2 multiplied by 10 raised to 3 newton दिया है हमें. Stretch of 6.72 into 10 raised to minus 3 mm. Delta L is 6.72 into 10 raised to minus 3 mm दिया है हमें और लेंथ है 100 mm. Lateral contraction means delta D in outer diameter means delta capital D is given to you 3.62 into 10 raised to minus 4 mm. अगर inner diameter रहता तो delta small d होता, remember it. तो calculate the values of 3 moduli means E, K और G की वैल्यू पूछी जा रही है हमें और पॉइजन्स रेशियो पूछा जा रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर ट्यूब पाई बाई 4 outer diameter square minus inner diameter square. Pi by 4 outer diameter is 18 square, inner diameter is 12 square. It becomes 141.37 mm square. Now delta L equal to PL upon AE. It is a basic formula. Delta L equal to PL upon AE और E इक्वल टू PL अपॉन A डेल्टा L. P की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 10 raised to 3. लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 100. क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कैलकुलेट किया है 141.37 और डेल्टा L मेरे पास गिवन है 6.72 इंटू 10 raised to minus 3. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यू वी विल गेट E इक्वल टू 210.52 इंटू 10 raised to 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये E आ गया हमारे पास. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पॉइजन्स रेशियो. तो पॉइजन्स रेशियो के लिए फॉर्मूला है हमारे पास EL अपॉन E. लेटरल स्ट्रेन बिकम्स डेल्टा D अपॉन कैपिटल D, डेल्टा L अपॉन L. तो म्यू इक्वल टू L ऊपर चला जाएगा, डेल्टा D इंटू L, डेल्टा L इंटू D. तो डेल्टा D क्या दिया है हमें 3.62 इंटू 10 raised to minus 4. लेंथ है हमारे पास 100. डेल्टा L गिवन है 6.72 इंटू 10 raised to minus 3
और एक्सटर्नल डायमीटर इज 18 mm, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इज गिवन इन एक्सटर्नल डायमीटर, दैट्स वाई डेल्टा कैपिटल डी इज हियर. अगर इंटरनल डायमीटर रहता तो डेल्टा स्मॉल डी होता. तो म्यू, और म्यू वैल्यू इज 0.3. अब म्यू आ गया, ई आ गया, तो अभी के और जी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह. ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू और g इक्वल टू ई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू. वैल्यू ऑफ ई इज 210.52 इंटू 10⁻³ टू 1 प्लस 0.3. तो g वैल्यू बिकम्स 81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. सिमिलरली for bulk modulus E equal to 3k into 1 minus 2 mu, our k value becomes E upon 3 into 1 minus 2 mu. E is 210.52 into 10⁻³, 3 into 1 minus 2 into 0.3, it becomes k equal to 175 multiplied by 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम था इलास्टिक कांस्टेंट के ऊपर. आवर थर्ड प्रॉब्लम इज हियर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे लोड हमें गिवन नहीं है प्रॉब्लम में, लोड गिवन है इसमें प्रॉब्लम में, सॉरी. राइट द गिवन डेटा. बल्क मॉडुलस फॉर मटेरियल इज के इक्वल टू 50 GPa, means 50 into 10⁻³ MPa. Rod with diameter 12 mm, means diameter is 12 mm, and axial pull is 14 kilonewton, means 14 into लोड यहाँ पे गिवन है, दिया है लोड 14 इंटू 10⁻³ न्यूटन. चेंज इन डायमीटर, हाँ क्या नहीं दिया है, तो लेंथ गिवन नहीं है प्रॉब्लम में. चेंज इन डायमीटर 3.6 इंटू, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है अगर लेंथ गिवन नहीं है प्रॉब्लम में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज होगा. तो डेल्टा डी 3.6 इंटू 10⁻³ तो अभी लेंथ अगर गिवन नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं हम. पॉइजन्स रेशियो इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन बिकम्स EL अपॉन म्यू. अब EL हमारा डेल्टा डी बाई डी से सॉल्व होगा और म्यू तो म्यू ही रहेगा. तो डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी क्या है हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻³ और डी क्या है 12 है, और अपॉन म्यू ये हमारा क्या हो गया 3 इंटू 10⁻⁴ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सिग्मा क्या होगा हमारा स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, मीन्स P अपॉन π/4 डी स्क्वायर, 4P अपॉन पाई डी स्क्वायर, 4P अपॉन पाई डी स्क्वायर हमारा सिग्मा हो जाएगा. 4 इंटू लोड हमारे पास फुल अप्लाइड है 14 इंटू 10⁻³ पाई, और डायमीटर है हमारे पास 12 स्क्वायर. तो स्ट्रेस की वैल्यू हमें क्या मिल गई 123.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये स्ट्रेस की वैल्यू आ गई. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ऑल ऑफ यू नो स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 123.8 एंड स्ट्रेन वैल्यू इज 3 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई, ये म्यू है, लिखना भूल गया था मैं. तो 3 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई म्यू, तो म्यू ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा 123.8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁴ म्यू. तो इसको अगर सॉल्व करते हैं दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये हमारा आ जाएगा ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 412.7 इंटू 10⁻³ म्यू. ये ई की वैल्यू आ गई. अब मेरे पास बल्क मॉडुलस गिवन है, तो ई और के में रिलेशन है हमारे पास, ई इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू. तो ई की वैल्यू 412.7, 3, के की वैल्यू 50 इंटू 10⁻³ 412.7 इंटू, सॉरी 1 मिनट, ई की वैल्यू है 412.7
into 10 raised to 3 into mu. 3 into 5 50 into 10 raised to 3 1 minus 2 mu. After calculating this or typing this equation in calculator, so after solving this, you will get value of mu as 0.21. mu की वैल्यू आ जाएगी 0.21. mu की वैल्यू आ गई 0.21. उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. डायरेक्ट कैलसी पे बड़े बड़े एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम में, तो आप इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. 3 इंटू 50 इंटू 10 रेज टू 3 म्यू, इसको इधर ले लिया हमने, 1 माइनस 2 म्यू. तो जो भी होगा इसको सॉल्व करके 10 रेज टू 3 कैंसिल हो जाएगा. जो भी होगा 412.7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 50 प्लस 2 म्यू, टेक म्यू एज कॉमन, इक्वल टू 1. आफ्टर सॉल्विंग दिस म्यू इक्वल टू 0.21 आ जाएगा. अभी इसको पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1 में पुट कर दो. ये इक्वेशन नंबर 1 है. ई में पुट कर देंगे हम. ई की वैल्यू है 412.7 इंटू 10 रेज टू 3 म्यू, मीन्स 412.7 इंटू 10 रेज टू 3, और म्यू की वैल्यू हमने पुट कर दिया 0.21. यू विल गेट 86.86 इंटू 10 रेज टू 3 MP. अगर GPA में लिखना है तो 10 रेज टू 3 को हटा देंगे हम. ये हमारा 86.86 GPA आ जाएगा. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. डेल्टा एल गिवन नहीं था, इसलिए सबसे पहले हमने स्ट्रेन कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ म्यू, फिर स्ट्रेस कैलकुलेट किया लोड अपॉन एरिया से, स्ट्रेस कैलकुलेट किया, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ म्यू हमने ई कैलकुलेट किया. एंड वी हैव वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस बाय यूजिंग दिस फार्मूला E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ E हियर वी विल गेट value of mu as 0.21 and substitute this mu value in equation number 1, we will get E value, capital E, modulus of elasticity. यहाँ से G भी करना रहे तो कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा चेंज है. A bar 30 by 30 by 250 mm लॉन्ग. सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इसका डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, ये हमारा 3D बार है. 1 मिनट, ये सबसे पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं. विथ लेंथ 250 mm, breadth is 30 mm and thickness is also 30 mm. तो L, B और T दिया है हमें. लोड अप्लाइड आर, P गिवन है हमें 90 किलो न्यूटन, P इक्वल टू 90 किलो न्यूटन. तो LBT दिया है, L is 250 mm and B and T is 30 mm and pull applied are 90 kilo Newton, 90 into 10 raised to 3 Newton. Extension of the bar delta L is 0.125 mm, 0.125 mm. Decrease in each lateral dimension में डेल्टा बी और डेल्टा टी दोनों की भी वैल्यू सेम दी हुई है 0.00375 mm. अब यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G और बल्क मॉडुलस K, ये कैलकुलेट करना है 4 के 4. तो अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट पॉइजन्स रेशियो EL अपॉन E, डेल्टा B बाई B, डेल्टा L बाई L, कुछ भी ले सकते हैं हम. डेल्टा B लो या डेल्टा T लो, L ऊपर चला जाएगा. डेल्टा B इंटू L अपॉन B इंटू डेल्टा L. तो डेल्टा B की वैल्यू है हमारे पास 0.00375, लेंथ की वैल्यू है 250, B की वैल्यू है, विड्थ है हमारे पास 30, और डेल्टा L की वैल्यू है 0.125. तो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू मिल गई हमें 0.25. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट
ई वैल्यू डेल्टा, सबसे पहले तो एरिया तो पता है हमें, क्रॉस सेक्शनल एरिया बी इंटू टी होगा। तो डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए। अभी ई को और डेल्टा एल को इंटरचेंज कर देते तो इट बिकम्स पी एल बाई ए डेल्टा एल, पी एल अपॉन एरिया बिकम्स बी इंटू टी। क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। लोड कौन से फेस पे अप्लाई हो रहा है, तो लोड अप्लाई हो रहा है हमारा ये फेस पे, ये जो फेस है यहाँ पे हमारा लोड अप्लाई हो रहा है। तो ये फेस का एरिया क्या होगा, विड्थ इंटू थिकनेस और इंटू डेल्टा एल तो रहेगा यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ पी इज 90 इंटू 10⁻³ 90 इंटू 10⁻³। वैल्यू ऑफ लेंथ इज 250, width is 30, thickness is 30 and delta L is 0.125. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बिकम्स 200 इंटू 10⁻³ क्या आ गया हमारा ये 200 इंटू 10⁻³ MPa। अब मुझे G कैलकुलेट करना है तो E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, यहाँ से G आ जाएगा E अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस म्यू। वैल्यू ऑफ E है हमारे पास 200 इंटू 10⁻³, 2 इंटू 1 प्लस पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है 0.25। तो वैल्यू ऑफ जी क्या आ गया, मुझे जी की वैल्यू मिल गई 80 इंटू 10⁻³ MPa। नाउ वैल्यू ऑफ के कैलकुलेट करना है तो E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। के की वैल्यू आ गई हमारे पास E अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। वैल्यू ऑफ E इज 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 1 माइनस 2 पॉइजन्स रेशियो इज 0.25। तो वैल्यू ऑफ के मिल गई मुझे 133.33 इंटू 10⁻³ MPa। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था प्रॉब्लम, बस ये बार का डायग्राम ड्रॉ करना था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिमिलर प्रॉब्लम एज अ प्रीवियस वन। स्क्वायर बार 50 बाई 50 mm, फिर से सिमिलर डायग्राम ड्रॉ करना है हमें, सिमिलर डायग्राम ड्रॉ करना है। सिमिलर डायग्राम, स्क्वायर लेंथ इज 200 mm, width is 50 mm and thickness is also 50 mm, thickness is also 50 mm and load is P is 500 किलो न्यूटन। लोड हमें दिया है P इक्वल टू 500 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले तो एज अ प्रीवियस वन सबसे पहले दिया क्या क्या है, तो लेंथ इज 200 mm, contraction over 200 mm length, width is 50 mm, width and thickness both are 50 mm, compressive load of, here compressive load is given, sorry, diagram of load will change, direction of load will change here, compressive load is given to us, P value is 500 into 10⁻³ न्यूटन। माइनस होगा लेकिन यहाँ माइनस नहीं रखे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेचर कॉम्प्रेसिव है बस। 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कॉन्ट्रैक्शन ओवर 200 mm लेंथ इज 0.5 mm, मीन्स डेल्टा एल हमारे पास लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डेल्टा एल दिया, कॉन्ट्रैक्शन ये होगा क्योंकि नेचर ऑफ फोर्स इज कॉम्प्रेसिव एंड इंक्रीज इन थिकनेस डेल्टा टी इज 0.04 mm। तो कैलकुलेट पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो अगेन ई एल अपॉन ई, डेल्टा टी अपॉन टी, क्योंकि यहाँ चेंज इन विड्थ तो दिया नहीं है, डेल्टा एल अपॉन एल, एल ऊपर चला जाएगा टी नीचे आ जाएगा, डेल्टा टी इंटू एल अपॉन टी इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 0.04, एल की वैल्यू है 200, थिकनेस की वैल्यू है 50 और डेल्टा एल की वैल्यू है 0.5। तो पॉइजन्स रेशियो हमारा आ गया 0.32। पॉइजन्स रेशियो आने के बाद अगेन डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए, यहाँ से ई कैलकुलेट हो जाएगा, पी एल अपॉन ए डेल्टा एल मीन्स पी एल अपॉन बी इंटू टी इंटू डेल्टा एल
वैल्यू ऑफ पी कितना है 500 इंटू 10⁻3, वैल्यू ऑफ लेंथ कितना है 200 mm, विड्थ की वैल्यू और थिकनेस की वैल्यू दोनों भी सेम है 50/50 और चेंज इन लेंथ है 0.5। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू इज और यंग्स मॉडुलस 80 इंटू 10⁻3 MPa। अब k कैलकुलेट करना है हमें, तो E इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 म्यू, k इक्वल टू E अपॉन 3 इंटू 1 - 2 म्यू। E की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻3, 3 इंटू 1 - पॉइजन्स रेशियो है 0.32। यहाँ से k की वैल्यू हमें मिल गई, k की वैल्यू मेरी होगी 74, अप्रॉक्स 74 इंटू 10⁻3 MPa। सिमिलरली g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो E इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, वैल्यू ऑफ g इज E अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू। E की वैल्यू है अगेन 80 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 1 प्लस पॉइजन्स रेशियो इज 0.32। आवर g वैल्यू इज ऐसे g पूछा था क्या, बल्क मॉडुलस पूछा है, पॉइजन्स रेशियो पूछा है, यंग्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है, सॉरी g पूछा भी नहीं है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में अगर g पूछा जाता तो इस तरह कैलकुलेट करते, लेकिन अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है। फॉर्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज फॉर यूनिएक्सियल, एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है E इंटू 1 - 2 म्यू। इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट ट्राइएक्सियल फोर्स सिस्टम। जब तीनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इलास्टिक कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे हम, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी यूनिएक्सियल का ई भी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला है E इंटू 1 - 2 म्यू। स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास E मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इट इज डेल्टा L बाय L इंटू 1 - 2 म्यू। डेल्टा L हमारे पास क्या है 0.5, लेंथ है 200, 1 - 2 इंटू पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है 0.32। तो हमारा आंसर क्या आ गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻4। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें पूछा जाता ऑल्सो फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, तो EV को हम डेल्टा V अपॉन V लिख देते और यहाँ से डेल्टा V आ जाता 9 इंटू 10⁻⁻4 इंटू वॉल्यूम, 9 इंटू 10⁻⁻4 और वॉल्यूम होता है LBT। L था हमारा 200, B हमारा है 50 और T हमारा है। फिर अगर चेंज इन वॉल्यूम पूछा जाता तो, लेकिन अभी नहीं पूछा है, ओनली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रहा है, तो यहीं तक हमारा आंसर हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राइएक्सियल फोर्स सिस्टम भी देखेंगे और उसके ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे और देन प्रोसीड करेंगे आगे के टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही।